So we are live now, as we have promised you. A very good evening to everyone. You must be wondering why I have kept the time so late. I hope everyone is free now with their household work and it's all a festival weekend. So I just thought to go late so that everyone can be relaxed and now free to attend our session. And we have some overseas followers also who have requested with us to keep it a little bit of their timings. So that's why we have kept today's session so late. So today we are here to I'm going to share some tips how I manage my weight loss and manage and maintain my weight during the festival season. So I just thought to share with you guys my simple hacks. So in this today's session, we're going to have till end, we're going to have many small tips and hacks of my kitchen too, ki how I manage the things handy in my kitchen to have everything. So it's going to be comfortable for everyone to make for your own diet and health and nutrition food when you are so much busy during the festive times and with the guest and preparing for the things. So we will be sharing the tips regarding the weight management, and at the end we're going to share with the detail about the gift vouchers which we have launched for this Diwali as a gift hampers. And at the end of this session, I'm going to share my simple kitchen hacks also with you, how I organize my fridge with small things. And abhi one of my video is also coming about the kitchen hacks, how we can keep the thing so handy and how we can organize the thing handy, which make our life so easy. And as a woman also we can prepare the things for ourselves, in spite of the fact balancing between the professional and the personal front. So many times I get this queries कि हम अपने लिए कुछ अलग सा नहीं बना पाते हैं. तो उसी चीज़ के ऊपर ध्यान देते हुए मैं अपने किचन को मैनेज करती हूँ, कैसे मैं अपनी वेजीज़ को, अपनी छोटी छोटी चीज़ों को अपने फ्रिज में ऑर्गेनाइज करती हूँ इन बॉक्सेस एंड ऑल. तो आई विल बी शेयरिंग लिटिल बिट about in this session, but in detail one of my video are going to come soon, so don't forget to follow us on our Instagram and Facebook page by the name of Heal to Fit. Let's see who all have joined us. Hi Lisha. Okay, so I hope everyone has shopped this weekend so well, as the Karwa Chauth is coming round the corner. So today we will be talking about Karwa Chauth fast also, how this Karwa Chauth fast is not so unique. And जैसे हम लोग को एक रहता है कि करवा चौथ का फास्ट है, पूरा दिन हमें उसमें रहना है, फास्टिंग में रहना है. So today I'm going to share about this Karwa Chauth fast also, ki how is it a similar what we do in our weight loss journey also. It's not unique, or it's not a something ki which we take so much of tension कि करवा चौथ आ रहा है तो पूरा दिन फास्टिंग में जनरली हम लोग बहुत टेंस में रहते हैं, कैसे रखेंगे. एंड व्हेन वी ओपन द फास्ट, तो आई एम गोइंग टू टेल यू द टिप्स how to open the fast also in the healthier way today, right? So I hope this session will be useful for you, so please
stay tuned with us till the end of the session. I will be not dragging the session very long. I try to keep it short and crisp so that I can share the just tips with you in a shortcuts. I know it's too late for everyone. Everyone going to have a weekday, going to start with a Monday weekday. So we're going to start now. So let our, yes, hi Mridul. So our followers are joining. Thank you, Lisha. Hi Kajal. I just thought to wear sari today. It's a festival video and we are coming live during the festival season. So why don't we dress up in a traditional way today? I just thought that's what I dress up in a sari. And yes, hi Nishi. Nice to see you all. So today I'm going to share a few tips how you can manage your fitness and weight during the festival time, because it's very common with everyone. हम जब सुनते हैं हम अपनी फिटनेस में आएंगे, अरे दिवाली आ गई है, फेस्टिवल आ गए हैं, तो विल नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज़ इन एनीथिंग. आज मैं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोलने भी नहीं वाली हूँ. आज आपको मैं सब खाने को बोलूँगी, बट इन माई वे. आई होप आप लोग मुझे फॉलो करें. टू नो मोर अबाउट दिस टिप्स एंड आर वेरी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ regarding the health, nutrition and fitness, do follow us on our Facebook and Instagram page. Yes, hi Shalini. Yes, people are joining with us. I hope that's what I kept it so late. I know everyone is free. And yes, so I think we should start now with our session now. So queries regarding your weight management, either maintenance of the weight, either your weight loss, or regarding diet, nutrition, exercise, you can write us in this comment box also, or we have our numbers on at our website as well as on the pages. So we're going to you can share with your family and friends if you like the session, and you can follow us on our pages, and you can contact on the given number which has been shared on our pages too. And if you have any query regarding during this session, if you have any query regarding the diet and anything, if you are facing any problem in weight management or maintenance or in a diet, you can write into the comment box. I'll try to give all the queries answers at the end of the session, right? Hi Swati. So we are starting with our today's session. So many festivals, as I said in my teaser video, so many festivals are there, and after the being in the festival season, कहीं ना कहीं वेट मैनेजमेंट का एंजाइटी एंड टेंशन आता है. जिन लोगों ने वेट लॉस कर लिया है उन लोग को आता है कि हम पुट ऑन नहीं कर जाएं तो हम कुछ नहीं खाएंगे, और जो लोग वेट लॉस वो ये सोच रहे हैं कि दिवाली के बाद शुरू करेंगे, कोई बात नहीं बढ़ने दो. पहले लॉकडाउन निकल गया 3 महीने ये सोचते हुए, फिर सोचा अब तो दिवाली आ गई, करवा चौथ आ गई, सारे भैया दूज आ गई. थैंक यू स्वाति. तो ये सोचा कि अब इसके बाद सोचेंगे, फिर न्यू ईयर आ जाएगा, राइट? फिर न्यू ईयर में सोचा जाएगा, अभी न्यू ईयर रिजोल्यूशन लिया जाएगा, अब नेक्स्ट ईयर ही सोचेंगे कि हमें फिट रहना है. सी माई मोटिव इन माई ड्यूरिंग माई सेशंस ऑल्सो एंड टू माई क्लाइंट्स ऑल्सो, आई ऑलवेज से पतला होना या मोटा होना इज नॉट my motive towards you all. My motive is to get a fit body and a strong body, जो मैंने अपने ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक्सपीरियंस करी है. दैट्स एक्सपीरियंस आई एम गोइंग टू शेयर in my every video also.
whatever the experience I share, I experience my own personal experience. No bookish thing, nothing. It's my own personal things which I experienced during my whole transformation. I lost 27 kg. Now I can say 27 kg. I was 73 kgs in January. Now I am 47 kg right now. So whatever I'm sharing with you, I share what I experience and what I do in my personal life. So I understand each and every ups and down what we face the problem when we want to come into the fitness or we want to lose the weight. There are so many hurdles and excuses are always serves in the plate, right? But guys, मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल जर्नी. इस पे चलना बहुत मुश्किल है, एक बार स्टार्ट करना मुश्किल है, बट एक बार स्टार्ट कर दिया ना तो यू विल नॉट स्टॉप. नो लुकिंग बैक. इट्स बिकम लाइक योर लाइफ स्टाइल. जैसे मेरी लाइफ स्टाइल बन गई है. इट लुक्स सो ब्यूटिफुल. योर बॉडी लुक्स सो ब्यूटिफुल व्हेन यू वेयर एनी ड्रेसेस, एनीथिंग. लाइक आई टेल यू अबाउट माई दिस साड़ी स्टोरी. माई मदर इन लॉ गिफ्टेड मी दिस साड़ी 1 year back. I had never wore because a plain chiffon साड़ी and I was thought कि यार ये स्लिम लोगों पे बहुत अच्छी लगती है शिफॉन, मेरे पर अच्छी नहीं लगेगी. एंड टुडे व्हेन आई वाज वियरिंग दिस साड़ी, मतलब आई वाज फीलिंग सो गुड फ्रॉम इनसाइड. खुद के लिए पतला होना है, खुद के लिए बॉडी को फिट करना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है. एंड it feel good when you have a beautiful body, you have a fit body. I should say weight is just a number, age is just a number. It's all about fit and strong body. That is important, that is very important. और वो कैसे आता है? When you make everything your lifestyle. It's not like आज कर लिया और फिर दोबारा एक बार टारगेट आ गया और फिर हो गया. नहीं, no excuses, no excuses, no looking back. It just become, make your lifestyle a healthy lifestyle and a fit lifestyle. So इसी चीज़ के ऊपर ध्यान देते हुए मेरी पहली टिप्स है आप लोगों के लिए. आज की पहली टिप है ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन कि फेस्टिवल इज नॉट ऑल अबाउट ओनली फूड. ओके, festival is not all about only food. It's all about looking good, buy new clothes, look good, dress up good. We can enjoy our festivals by indulging yourself in different things, right? अपने आप को ग्रूम करो, अपने आप को घर को डेकोर करो, मेकअप करो, मतलब whatever things you like, feel good about it. Do that. मतलब have parties with friends. Parties also doesn't mean only a food and food, because हमारी हर चीज़ एक फूड पे आके रुक जाती है कि खाना है, खाने को मनाही नहीं है, बट इट डजेंट मैटर कि एक खाना नहीं है तो उसकी वजह से कोई इन्जॉयमेंट नहीं है. फेस्टिवल मीन्स ब्यूटिफुल डेकोरेशन. फेस्टिवल मीन यू लुक ब्यूटिफुल. फेस्टिवल मीन्स buy new clothes for yourself, right? So pehli tips for me, it's all about ki involve yourself in things. First thing is that. Second thing, right? Second thing is a very important thing, is like this festival season I tried at my place also. Why don't we eat good and serve good and gift good? What does it mean? Eat good means आप अगर हेल्दी खाएंगे, अगर और आप सर्व जो आएंगे इस बार आपके पास दिवाली पे गेस्ट जो आएंगे उनको भी आप हेल्दी सर्व करेंगे एंड गिफ्ट भी सर्व हेल्दी करेंगे. इसका क्या हुआ, इसके पीछे क्या टिप्स है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें फेस्टिवल सीजन की, हम बात करेंगे पहले जैसे आपके घर गेस्ट आएंगे, अभी आपकी दिवाली पार्टीज होंगी, गिफ्टिंग होगी, तो आप कैसे लोगों को मना करेंगे? ये बहुत कॉमन है कि हम कैसे मना करेंगे. बहुत बार चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, ये बहुत सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूसेस, पैक जूसेस, इट्स लॉट्स ऑफ शुगर. कुछ नहीं है, सिर्फ शुगर है. हम लोग जाते हैं बोलते हैं नहीं मैं चाय नहीं लेती हूँ, मैं आई टेक अ जूस. नो, यू विल नॉट टेक अ जूस. इवन आपके घर पे भी जो लोग गेस्ट आएंगे इस बार,
तो आप इस बार क्या रखेंगे अपने यहाँ, ईदर यू प्रोवाइड अ ग्रीन टी सबको पसंद नहीं है, इट्स ओके, आप रखिए अजवाइन की चाय। हैव एनीबडी हैव ट्राइड दी अजवाइन की चाय? आई विल टेल यू वन थिंग। अजवाइन का एक पेड़ आता है, अजवाइन का पत्ता हर जगह मिल जाता है, आप अपने किसी भी लोकल नर्सरी पे देखेंगे, एंड आई ऑलवेज मेक एट माई प्लेस। उसको पानी में उबालिए, उसमें काला नमक थोड़ा सा और नींबू डाल के, एंड सर्व दैट इज नोन एन अजवाइन। दैट इज अजवाइन इज वेरी गुड फॉर योर डाइजेशन ऑल्सो एंड योर वेट लॉस ऑल्सो। सो इस बार कोई घर पे आता है तो उसको अजवाइन की चाय, हल्दी की चाय, राइट, उसको वो सर्व कीजिए। प्लेन शिकंजी सर्व कीजिए, इन स्पाइट ऑफ प्रोवाइडिंग विद दिस कोल्ड ड्रिंक्स या केन जूस या टेट्रा पैक्स, नो। एंड अगर कोई हंसता भी है तो इट्स ओके, कहिए हम आजकल इम्यूनिटी सर्व करते हैं, एंड आई टेल यू एवरीवन गोइंग टू लव इट, एवरीवन गोइंग टू लव अबाउट इट। बाहर इतना स्मॉग है, आप देखिए अभी से पोल्यूशन शुरू हो गया, वैसे हमें रेस्पिरेटरी, वैसे कोरोना का टाइम चल रहा है और वैसी रेस्पिरेटरी अभी इस समय, उसके लिए अगर आप किसी को गर्म चीज़ सर्व करते हैं, आप किसी के घर जाके गर्म पानी मांगते हैं, आई थिंक दैट इज़ अ बेस्ट ऑप्शन रादर टेकिंग समथिंग लाइक चाय कॉफ़ी। चाय कॉफ़ी लेना इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, चाय कॉफ़ी में एक कम चम्मच चीनी लेना इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मैं बहुत कॉमनली ये चीज़ सुनती हूँ कि हम ना फीकी चाय लेते हैं और साथ में बिस्किट लेते हैं, और बिस्किट की क्वांटिटी कितनी लेते हैं, 2-3 रस खाए थे। क्या आप लोगों को पता है एक रोटी के अंदर कैलोरीज कम होती है और 2 रस में उससे डबल कैलोरीज होती है? तो उससे अच्छा एक रोटी खा लीजिए। रोटी नहीं खाते हम लोग सोचते हैं मैरीगोल्ड के बिस्किट खा लिए तो वो हो गया, नो। हमें खाना खाना है, हमें मील खाना है। अगर आप मील प्रॉपरली नहीं खाएंगे, टाइमली नहीं खाएंगे और आप मंचिंग करेंगे, वो आपको ज़्यादा आपका डाइजेशन, आपका गट डिस्टर्ब करेगा, एंड आपका वेट लॉस या आपका वेट मेंटेन भी नहीं करेगा और वेट बढ़ाएगा आपका। सो क्या करना है इस बार, आप किसी के अभी जाते हैं, चाय लीजिए, ब्लैक कॉफ़ी ले लीजिए, ग्रीन टी ले लीजिए, एंड आई टेल यू वन थिंग मोर इंटरेस्टिंग अबाउट इट, मैंने जो अभी थोड़ा थोड़ा शुरू करा है, अगर आप किसी अपने नियर डियर के घर जा रहे हैं जहाँ पे कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, वहाँ आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी ग्रीन टी के सैशे साथ लेके जाइए। मैं करती हूँ, इवन आजकल मार्केट में देसी काढ़े के सैशे आने लगे हैं, तो मैं किसी के घर जाती हूँ, कोई बोलता नहीं नहीं हमारे यहाँ ग्रीन टी नहीं है, वो बहुत ऑकवर्ड लगता है, मैं बोलती हूँ आप कुछ मत दीजिए मुझे, आई एम सिटिंग विद यू, आई एम एंजॉइंग द कप ऑफ वार्म वाटर विद यू, हॉट वाटर, और मैं अपना एक सेशन निकाला, उसमें डाला, एंड आई एंजॉय विद दैट। वी हैव टू एंजॉय द कंपनी। आई थिंक हमें चाय और कॉफ़ी के लिए कंपनी चाहिए होती है, हमें चाय कॉफ़ी नहीं पीनी होती, हमें वो गप्पे मारने की कंपनी चाहिए होती है, किसी के साथ बैठने के लिए। अब आपके कप में कॉफ़ी है या चाय या गर्म पानी है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? इट्स ऑल अबाउट यू, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ एंड हाउ यू present yourself in front of anybody, right? And how you put your words, how you put your things in front of anybody about the health, right? इवन इससे क्या होगा, आप किसी और को भी मोटिवेट करेंगे एक हेल्दी लाइफ के लिए, ठीक है? तो एक तो हमारी ये टिप हुई कोई भी ड्रिंक्स के लिए, क्योंकि बहुत कॉमन है, चाय कॉफ़ी टी कॉफ़ी ये सब चीज़ों की बहुत कॉमन हमारे यहाँ शिकायत रहती है, और कोल्ड ड्रिंक्स को लेकर। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे सर्व के लिए, अब बिस्किट्स है, स्वीट्स है, आप ये सर्व करते हैं, इवन हम नट सर्व करते हैं। क्या आप लोगों को पता है ये चीज़ कि एवरी हेल्दी चीज थिंग इज ऑल्सो नॉट वेरी हेल्दी फॉर वेट लॉस। एवरीथिंग शुड बी इन पोर्शन कंट्रोल। मैं पोर्शन कंट्रोल के ऊपर ज़्यादा फोकस करूंगी अभी आगे आने वाले सेशन में। पोर्शन कंट्रोल इज द की वर्ड फॉर मी। आप सब खाइए, आप हर चीज टेस्ट कीजिए, मैं सब खाती हूँ, बट इन पोर्शन कंट्रोल, राइट टाइम पे राइट फूड खाना बहुत जरूरी है, राइट क्वांटिटी में खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आप क्या करेंगे सर्विंग में, स्नैक्स मंचिंग के लिए इस बार क्या डिसाइड करें? जब दिवाली पे हम ट्रे लगाएंगे, हम जब दिवाली पे ट्रे लगाएंगे तो हम इस बार मखाने लगाएंगे रोस्टेड, राइट? आप बाज़ार से लाना चाहें, बाज़ार में बहुत सारे फ्लेवर्ड मिलते हैं, अदरवाइज
you can make a flavored makhanas at home. Believe me, you can make a flavored makhanas at home. Serve makhanas, serve different type of chanas, right? Serve healthy and ये आपकी डाइट नमकीन ना, किनुआ का बहुत अच्छा, किनुआ यू नो प्रोटीन ग्रेन, किनुआ के स्नैक्स एंड किनुआ के नमकीन आने लगे हैं. इफ़ यू सर्च इन दी हेल्थ कॉन्शियस वाला जो एक सेक्शन रहने लगा है आजकल अच्छे अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर में, वहाँ आपको इतने हेल्दी ऑप्शंस मिलेंगे टू सर्व दिस टाइम ड्यूरिंग दी दिवाली. सो अगर आप, मैंने कहा ना, सर्व हेल्दी, ईट हेल्दी एंड गिफ्ट हेल्दी, तो क्यों ना हम अपनी इस बार ट्रे में ही ये सब चीज़ें लगाएं कि अंजीर है, राइट? हम लोग ड्राई फ्रूट्स तो वैसे भी लगाते ही हैं. तो आप कोशिश कीजिए कि आप किसी के घर भी जा रहे हैं तो आप उनको बोलिए या तो आप फ्रेश फ्रूट्स खिलाइए. दैट इज़ अ बेस्ट ऑप्शन. आई एम टेलिंग यू, इट इज़ अ बेस्ट ऑप्शन. कोई भी आता है, फ्रेश फ्रूट काटिए आप उसके लिए. आप किसी के घर जाते हैं, आप बोलिए आई विल टेक अ एप्पल, नो इश्यूज, आई विल टेक अ एप्पल, आई हैव बादाम लिया, एक ले लिया. बट अब ये सोचो मैं 3-4 बादाम या बादाम ही बादाम खा रहे हो, दैट इज ऑल्सो फुल ऑफ हाई कैलोरीज. सो नट्स हैं, सीड्स हैं, ऑल द रोस्टेड सीड्स नाउ डेज, पम्पकिन फ्लेक्स एंड दिस मेलन सीड्स कम इन अ मिक्सचर ऑफ द रोस्टेड सॉल्टेड सीड एंड इट्स अमेजिंग. आप बिलीव कीजिएगा, मेरा भी एक जो वीडियो आ रहा है उसमें मैंने यही बताया कि मैं हेल्दी मंचिंग क्या करती हूँ. अगर मैं बाहर किसी शॉपिंग के लिए जा रही हूँ तो भूख लगने लगती है, तो पहले क्या होता था, पहले आप कुछ भी जंक ले लेते थे और आप खाने लगते थे बाहर निकल के कि यार अभी टाइम नहीं है, शॉपिंग करनी है, बाहर निकले हुए हैं, अभी क्या खाएंगे, हेल्दी वेल्दी के लिए इतना टाइम नहीं है. नाउ आई टेक विद मी दी हेल्दियर ऑप्शंस. वो मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा. आई थिंक दैट विल give you a good information regarding the healthy munching. So मैंने आपको बताया फॉक्स नट्स के बारे में बताया, मैंने आपको रोस्टेड सीड्स के बारे में बताया टू सर्व दिस टाइम. आई टोल्ड यू अबाउट द टर्मरिक टी, ग्रीन टी, अजवाइन की टी. यू सर्व दिस थिंग ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल सीजन. तो ये तो बात हुई हमारी अभी सर्विंग की एंड गिफ्टिंग की. फ्रूट्स खाइए, किसी के घर जाते हैं. Have anything which it's not put the pressure on your gut, और जो आपके गट को क्लीन रखे. होता क्या है ना, फेस्टिवल सीजन में हम इतने सारे ड्राई फ्रूट्स या मीठा खाते हैं तो हमारा गट क्लीन नहीं होता है, उसकी वजह से हमारा पुट ऑन होता है. इट्स ऑल अबाउट योर डाइजेस्टिव सिस्टम इन वेट लॉस, राइट? ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर. किसी के घर भी जाइए, बोलिए मुझे गर्म पानी दे दीजिए. आप 2 ग्लास गर्म पानी पीजिए, जीरा डलवा के, एक लेमन डलवा लीजिए, हाफ लेमन एंड भुना हुआ जीरा. इट्स अ गुड डिटॉक्स ड्रिंक, यू कैन हैव इट. सो जैसे मैंने बोला ना कि इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं किसी के सामने. आप किसी को मतलब आप किसी को मिसबिहेव भी नहीं कर रहे, आप किसी को मना भी नहीं कर रहे, आप सिर्फ ये रख रहे हैं कि मैं इसकी जगह ये लेना चाहूँगी एंड आई विल सिट विद यू एंड एंजॉय. मैं पर्सनली ऐसे ही करती हूँ, राइट? दूसरी चीज़, ये तो हो गई हमारी 2 टिप्स अबाउट कि हमें कैसे और क्या करना चाहिए. नाउ हम बात करेंगे कि हाउ वी कैन मैनेज आवर वेट. जो हम पुट ऑन ना करें, या हमने वेट लॉस कर लिया, हम अभी वेट लॉस करना चाहते तो हम और भी वेट हमारा नहीं बढ़े. आप बिलीव करेंगे, जब मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी करी थी, आई स्टार्टेड इन जनवरी और फेब स्टार्टिंग में, तो बीच में होली आई थी एंड आई नीड टू गो फॉर होम टाउन फॉर होली सेलिब्रेशन. तो मेरे दिमाग में भी बहुत थॉट थे कि ओ गॉड होली आ गई है, आई एम गोइंग टू मीट रिलेटिव्स एंड व्हेन यू गो टू सेलिब्रेट योर फेस्टिवल्स विद योर फैमिली, तो जनरली सबका ये होता है, अरे यार कोई नहीं यार, एक खा लो ना, अरे अरे दिवाली 1 साल में एक बार आती है, राइट? होली एक बारी में एक बार आती है, अरे खा लो ना यार, 2 गुंजिया खा लो ना, अरे पूड़ियाँ. और हम जनरली हमारे नॉर्थ में तो सब चीज़ों में मीन्स फेस्टिवल मीन्स बस कढ़ाई चढ़ा दो और पूड़ियाँ तल के पूड़ियाँ खा रही है. यस, मैंने सब खाया. व्हेन आई वेंट टू सेलिब्रेट होली विद माई फैमिली, आई हैड एवरीथिंग, बट आई हैड इन पोर्शन कंट्रोल एंड एट द करेक्ट टाइम. वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ. आप अपना एक गोल बनाइए. आपको सब कुछ खाना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं,
अगर आपको ये मालूम है कि आज दिवाली की पार्टी में जाना है, अगर हम बात करें दिवाली की पार्टी में, मुझे शाम को दिवाली की पार्टी है, या शाम को मेरे घर आज जैसे अभी करवा चौथ के बारे में मैं आपको बताऊंगी अभी डिटेल में, मैं अभी इसलिए दिवाली पे बता रही हूँ कि जनरल है, उसमें हमें कोई फास्टिंग नहीं रखनी होती है। तो आपको पता है कि आपके यहाँ शाम को पूड़ी बननी है, या शाम को मीठा खाना है, या आज ये होना है, तो आप कैसे करेंगे बैलेंस? आप बैलेंस करेंगे अपनी कैलोरी डेफिशिट में जाएंगे। आप कैसे कैलोरी डेफिशिट? कभी भी हमें वेट लॉस करना है तो इट मीन्स कैलोरी गो इनटू द कैलोरी डेफिशिट। कैलोरी डेफिशिट क्या होता है? आपकी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है कैलोरीज की, आप उससे कम उस पर जाएंगे तो आपका वेट लॉस होगा। और अगर आपकी बॉडी की, जैसे मैं मेंटेनेंस वेट डाइट पे, मतलब मैं आई एम ऑन मेंटेनेंस नाउ, मेरा वेट लॉस हो चुका है, मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, तो मैं अभी क्या करती हूँ, आई ईट इन अ पोर्शन कंट्रोल, बट मैं अपनी कैलोरीज के बराबर खाती हूँ। मुझे कैलोरी डेफिशिट में अब नहीं जाना है। बट जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उन्हें कैलोरी डेफिशिट में ही रहना होता है हमेशा। वो कैसे रहना होता है? जैसे अब आपको शाम को खाना है तो आप सुबह क्या करेंगे? आप पहले तो आप सुबह फ्रूट डाइट पे रहेंगे, राइट? आपको पता है कि मुझे शाम को आज कैलोरीज ज़्यादा खानी है, तो मैं आज सुबह ब्रेकफास्ट आई विल बी टेकिंग अ फ्रूट डाइट ब्रेकफास्ट। आफ्टरनून में अगर मैं 2 रोटी खाती हूँ तो मैं 1 रोटी खाऊंगी आज, क्योंकि मुझे शाम को भी डिनर हैवी करना है आज। ठीक है? तो आप उस तरीके से मैनेज करेंगे। यू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर ड्यूरिंग योर फेस्टिवल सीजन। अगर आपने कुछ भी लिया भी है, हैव ल्यूकवार्म वाटर विद दिस लेमन एंड जीरा वाटर। पूरे दिन में आप 2 से 3 बार ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 बार ग्रीन टी ले सकते हो, इट विल इंक्रीज योर मेटाबॉलिक रेट। उसके बाद अब आपको शाम को खाना है। अब आप कैसे खाएंगे शाम को? पहली बात तो कोशिश कीजिए कि अगर आपको कोई पार्टी में जाना है या अगर आपको कोई लंच अच्छा बनाना है तो आप लंच पे करिए, स्किप द डिनर। कोशिश करिए आगे लाइफस्टाइल में भी ये बनाने के लिए, इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ गुड सेलिब्रेशन, मतलब एनी मील, सेलिब्रेशन ऑफ योर बर्थडेज या एनीथिंग, तो हमारे यहाँ एक दिमाग में मिथ है कि हमें डिनर्स पे जाना है, हैवी डिनर्स करने हैं। बट क्या हम उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं? हम उसको हैवी लंचेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज लंच में करेंगे तो हमारा डाइजेशन जल्दी होगा और हमारा वेट भी नहीं बढ़ेगा और हमारा कैलोरीज इनटेक भी नहीं बढ़ेगा। तो हमें क्या करना है? हमें प्रिपेयर करना है, हम लंच करें, मेनली हैवी लंच करें। बट अगर वो पॉसिबल नहीं है, जनरली हमें किसी के डिनर पे ही जाना होता है या कुछ है, तो आप क्या करेंगे? पहली बात तो सुनिए, आप भूखे नहीं जाएंगे। अगर आप भूखे जाएंगे कि आपको पता है कि मुझे शाम को वहां जाके खाना है, तो आप पूरे दिन से भूखे हैं, यू विल एंड अप ईटिंग लॉट्स ऑफ ओवर देयर, राइट? पूरे दिन का हमारा बैलेंस करना सब बेकार है। आप क्या करेंगे? आप घर से 6 से 7 बजे, अगर आपको 8 बजे या 9 बजे किसी के यहाँ पार्टी में जाना है, आप 6 बजे 7 बजे अपना डिनर कर लेंगे, राइट? यू ईट योर डिनर, either you can take your protein shake, either you eat whatever you want to eat around 6 to 7 o'clock, 7 o'clock के बाद नहीं। उसके बाद जब आप वहाँ जाएंगे पार्टी में, देखिए दे आर मैनी ऑप्शन इफ़ यू वांटेड टू दैट। जैसे अगर आपको स्नैकिंग करनी है वहाँ जाके, आपको मैंने जैसे बताया अभी ड्रिंक्स के बारे में बनाया, आप बोलिए आई विल नॉट टेक एनीथिंग बेवरेजेस इन सोडा, नो सोडाज प्लीज़। वैसे भी वेट लॉस नहीं, वैसे भी सोडाज आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। हाई कंटेंट ऑफ शुगर, वेरी हाई कंटेंट ऑफ एनी शुगर, ये बहुत बड़ा मिथ है। एसिडिटी है तो सोडा पी लो या लिम्का पी लो, नो, इट्स अ बिग मिथ। हाई कंटेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और वो सोडा इट्स लाइक वेरी हाई कंटेंट ऑफ शुगर, नो। बेटर है गुनगुना पानी लीजिए, ल्यूकवार्म वाटर लीजिए, नींबू डालिए, जीरा डालिए, हैव दैट, इट्स अ बेस्ट रेमेडी। प्लेन वाटर से बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। एंड हमारे गट को क्लीन करने के लिए पानी से अच्छा कुछ हो ही सकता। वहाँ जाने के बाद अब आपको मंच करना है। अब आप मंच में क्या करेंगे? कोशिश कीजिए अगर सैलड है तो हैव लॉट्स ऑफ सैलड, अपना प्लेट लगाइए, सब कुछ रखिए, मेरे लिए सब कुछ रखिए। पीनट्स हैं, पीनट्स बहुत सारे नहीं खाने, फिर देन अगेन हाई कार्ब्स, थोड़े से पीनट्स रखिए। पनीर टिक्का है, हैव 2 पीसेज ऑफ पनीर, प्रोटीन आ जाएगा, कोई इशू नहीं है हमारे लिए। साथ में वेजिटेबल्स रखिए, बहुत सारी वेजीज ले लीजिए उसमें आप। ठीक है, आजकल जनरली सैलेड सबके साथ सर्व होता है। उसके अलावा आप सिप 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 करके अपना कोई भी ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी, एनीथिंग यू कैन हैव इट, एंड किसी भी चीज़ को, प्लेट को धीरे खाना।
में बैठे हैं, एकदम से जल्दी खत्म करके प्लेट रख देंगे तो सब कहेंगे अरे आपने तो कुछ नहीं लिया, अरे तुम कुछ खाने नहीं, क्या डाइट पे हो तुम? हर किसी का क्वेश्चन पहला ही आ रहा है। आपको कुछ नहीं कहना है, कहते नहीं नहीं आई एम ईटिंग एवरीथिंग। और आप एक चीज़ को आराम आराम से खाएंगे। आप देखिए, ना तो आपकी कैलोरीज बढ़ेगी एंड आप सब कुछ टेस्ट करेंगे। अगर आपने स्नैकिंग अच्छी कर ली या मंचिंग अच्छी कर ली, अब आप डिनर नहीं करेंगे वहाँ पे। डिनर में आप कैसे करेंगे? अगर आपको प्लेट लगानी पड़ती है, फिर अगेन टेक अ लॉट्स ऑफ सैलेड, कर्ड लीजिए, थोड़ा सा सब्जी लीजिए, सब्जी ज़्यादा लीजिए, ठीक है, छोले हैं, एनी पल्सेस वाला चीज़ है, हैव दैट एंड टेक मिस्सी रोटी है तो मिस्सी, अवॉइड टेकिंग दी नान, नो मैदास, टेक वन रोटी और इधर अ बेस्ट वे टेक 2 टेबल स्पून ऑफ राइस। राइस आपको कभी मोटा नहीं करते, कार्ब्स है, बट रोटी एंड राइस आर सिमिलर फॉर अस। इट डजंट मैटर कि मैंने चावल छोड़ दिए तो मैं पतली हो जाऊंगी, नो। होम मेड एनीथिंग, इट्स नॉट मेक यू फैटी, इट्स नॉट मेक यू गेन वेट। एवरीथिंग इन पोर्शन कंट्रोल, होम मेड सिंपल फूड नेवर बी हार्मफुल फॉर यू। अगर कहीं से बाजार से आया है, ग्रेवी ज़्यादा ले लीजिए, ग्रेवी लीजिए, साथ में मिस्सी रोटी है, आधी मिस्सी रोटी लीजिए एंड आप मिस्सी रोटी खा लीजिए और धीरे धीरे खाइए। जैसे मैंने बोला ना, धीरे धीरे खाइए, कोई इशू नहीं है। अब बात आई है स्वीट्स की। अब आपके, अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कीजिए वहाँ पे, अगर अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो आप क्या करेंगे? मैं हर चीज़ लेती हूँ, एक एक चम्मच लेती हूँ, कुछ नहीं होता एक एक चम्मच में, राइट? मैं अगले दिन बैलेंस करना सिखाऊंगी अभी आप लोगों को। एक एक चम्मच लीजिए आप लोग। कोशिश कीजिए अगर कहीं पे भी स्पंज वाला वाइट रसगुल्ला आपको मिले, उसको स्क्वीज़ करके हैव दैट वन। हलवा है, अभी गर्मी सर्दियों का सीज़न आ रहा है, गाजर का हलवा, मूंग की दाल का हलवा, एक चम्मच लीजिए, सब कुछ लगाइए प्लेट में। अगर खाना है तो, अगर आपका मन है तो मन नहीं मानना है। अगर आप किसी पार्टी में गए हैं, अगर आपको नहीं खाना है तो लोगों को दिखाने के लिए नहीं खाएंगे, प्लीज़, राइट? तो वो आपके ऊपर है कि हाउ यू मैनिपुलेट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर्स, राइट? इट्स ऑल अबाउट हाउ यू मैनिपुलेट योर सेल्फ। सो अभी आपने, और अगर आप घर से खा के जाएंगे तो आपको भूख वैसे भी कम लगेगी, तो आप मंच कम करेंगे, आप धीरे 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 बैठ के उसको एंजॉय कर सकते हैं। enjoy the company, enjoy the music, enjoy the environment, rather enjoying more and focusing on the food. फूड खाइए, सब कुछ खाइए, पोर्शन में खाइए। घर से खा के जाएंगे तो एक एक पीस में टेस्ट के लिए खाइए। हमें अपनी टेस्ट बड को सेटिस्फाई करना है, हमें जंक से और हैवी फूड से पेट नहीं भरना है। इसलिए मैंने बोला कुछ भी खा के जाओ, घर से खा के जाओ, ठीक है? दैट्स नॉट अ इशू। कुछ भी घर का, एनीथिंग, रोटी सब्जी, दाल रोटी सब्जी, कुछ भी घर से खा के जाइए, खाली पेट नहीं जाएंगे हम लोग। उसके बाद आप क्या करेंगे? आपने खा लिया, अब नेक्स्ट डे आपको कैलोरीज बैलेंस करनी है, तो आप क्या करेंगे? यू विल हैव इंटरमीडिएट फास्टिंग इन ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन। व्हाट इज इंटरमीडिएट फास्टिंग? इट्स अ वेरी गुड थिंग। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 8 आवर्स या 12 आवर्स या 16 आवर्स का हम विंडो रखते हैं, क्लोज विंडोज, और हम लोग ओपन विंडो। ओपन विंडो क्या होती है इंटरमीडिएट फास्टिंग में? जिसमें 8 घंटे हम खाते हैं। खाते मतलब ये नहीं है कि हम एक साथ बहुत सारा खाते हैं, और हम 12 घंटे कुछ नहीं खाते हैं। इट इज़ नोन एज इंटरमीडिएट फास्टिंग। वो कैसे होती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने रात को 10 बजे कहीं पे भी डिनर करा, या आपने कोई भी फेस्टिवल पे या कोई भी आपने किसी पार्टी में 10 बजे आपने डिनर किया, तो अगले दिन 10 बजे 12 आवर्स हो गए, 10 बजे से पहले आप कुछ नहीं खाएंगे। एंड कुछ नहीं खाने में भी जब आप अपना फास्ट खोलेंगे इंटरमीडिएट फास्ट में, आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फ्रूट से, बिकॉज जब आप 12 घंटे का फास्ट रखते हैं, हमारी बॉडी, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रिपेयर नहीं होता कि वो एकदम से हैवी कुछ भी खाए। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला कि जब हमें किसी पार्टी में जाना होता है तो बहुत कॉमन है, हम पूरा दिन भूखा रहते हैं और सोचते हैं आज तो मैं पूरा दिन भूखा रही तो अब मैं शाम को खाऊंगी तो मैं खा सकती हूँ। दैट इज़ अ रॉन्ग अप्रोच, दैट इज़ अ वेरी वेरी रॉन्ग अप्रोच। आप ज़्यादा खाएंगे, आप ज़्यादा कैलोरीज लेंगे, दैट इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। आप घर से खा के जाइए, आप थोड़ी थोड़ी देर में लाइट खाइए, वहाँ जाके थोड़ा खाइए।
अगर आप पूरे दिन भूखे रहकर खाएंगे और एकदम से हैवी खाएंगे तो वैसे ही दिक्कत होगी। इसलिए इंटरमीडिएट फास्टिंग में जब हम फास्ट खोलते हैं तो ऑलवेज ओपन योर फास्ट विद द लिक्विड फर्स्ट, ईट एनीथिंग, छाछ, मिल्क, एनीथिंग। उसके बाद जैसे अगर आपको कुछ मीठा खाना है, नाउ डेज इट्स अ वेरी गुड फूड इज का मतलब what you can, a vegetable or fruit or what you think is a shakargandi, sweet potato, very very nice food। उसका हलवा बहुत अच्छा बनता है, ठीक है। जो लोग जैगरी या खांड यूज़ कर सकते हैं, वाइट शुगर डोंट यूज़ वाइट शुगर, इट इंक्रीज योर कैंसरस सेल ऑल्सो, प्रोसेस वाइट शुगर। मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ, आई टेल यू अबाउट वन मोर मिथ अबाउट इट। जो हमारी ये जैगरी होती है या हमारी खांड होती है या हमारी शुगर होती है, इन तीनों की कैलोरीज सेम होती है। अगर आप इसलिए जैगरी खाएंगे कि मेरे को कैलोरीज कम मिल रही है, मैं शुगर खाऊंगी तो मेरी कैलोरीज ज़्यादा होगी, तो वो मिथ है। अगर वो तीनों की कैलोरीज अलग है बट न्यूट्रिशन वैल्यू शुगर जैगरी की ज़्यादा है, इसलिए आई प्रेफर जैगरी एंड अ खांड। खांड जो पहले ज़माने में आती थी ना, उस खांड शुगर, वो रॉ खांड, रॉ शुगर, राइट। Otherwise, if you are very much serious about your weight loss, तो stevia is a very natural sugar nowadays. You can buy it from the any departmental store. Stevia आता है, उसका आप कोई भी अपना मीठा बना सकते हैं हलवे में, anything. It's a very natural sugar, stevia. तो शकरकंदी की चाट, वेरी नाइस, वो स्वीट उसका भी काम करता है, चटपटे का भी काम करता है, और आपके पेट एकदम से डाइजेस्ट सिस्टम के ऊपर हैवी भी नहीं होता, राइट। तो एक तो ये आपके लिए बहुत अच्छा वो है शकरकंदी। दूसरी चीज़, आप लाइट उससे खोलेंगे सबसे पहले अपना इंटरमीडिएट फास्टिंग में। आप लाइट खाएंगे उस दिन। अगर आपने पहले दिन खाया है, अगले दिन आप खाइए मूंग की दाल की खिचड़ी से खा सकते हैं, दाल एंड रोटी, दाल एंड चावल यू कैन हैव, एवरीथिंग इन अ पोर्शन कंट्रोल। पोर्शन कंट्रोल हम कैसे मेजर करते हैं? मैं अपने घर में अगर खिचड़ी रात को खाती हूँ या दाल चावल खाती हूँ तो मैं प्लेट में नहीं खाती हूँ, मैं बाउल में खाती हूँ। अगर आप प्लेट में खाना खाते हैं ना तो आप ज़्यादा खाते हैं, चावल, खिचड़ी, पुलाव। आप बड़े बाउल में खाइए, कम खाएंगे, दैट इज़ नोन एज पोर्शन कंट्रोल। अगर आप 2 रोटी खाते हो और अगर पहले हम वी यूज टू हॉक कि हमें पूरा भरना है, नो, हमें 80% ऑफ आर डाइट, 80% ऑफ आर स्टमक शुड बी फिल। हमें 20% खाली छोड़ना होता है फॉर आर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डाइजेस्टिव जूसेस टू डाइजेस्ट आर फूड ईजीली। तो ये हुआ इंटरमीडिएट फास्टिंग। आपने लाइट उससे खोली, अगले दिन अपनी पूरी बॉडी को डिटॉक्स किया, अपनी बॉडी को बैलेंस किया, राइट, गॉट माई पॉइंट। तो दीज आर द वेज कि आप फेस्टिवल सीजन में आप पार्टीज भी एंजॉय करोगे, आप हर चीज़ खाओगे भी, और आप अपने आप को बैलेंस भी करोगे। लगता है इट्स ऑल अबाउट गिविंग इनपुट एंड आउटपुट। अगर आउटपुट इनपुट ज़्यादा हो गया एक दिन पहले तो आप अगले दिन का इनपुट कम करोगे आप, राइट। उस दिन अपनी बॉडी को बैलेंस करोगे, अपनी बॉडी को रेस्ट दोगे, आप पानी पियोगे खूब, और आप लिक्विड डाइट पे रहोगे। और अगर आपको ये पता है मुझे शाम को खाना है तो आप हल्का खाकर जाओगे, आप भूखे नहीं रहोगे, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग अप्रोच। तो एक तो ये बात हो गई पोर्शन कंट्रोल, एंड ईट एवरीथिंग एंड ट्राई टू हैव पिक एंड ट्राई टू पिक द थिंग्स एंड ट्राई टू पिक द थिंग्स विच आर हेल्दियर इन द ऑप्शन। हमारी प्रॉब्लम ये है ना, हमारे पास अगर 10 ऑप्शन सामने होते तो हम सोचते हैं अरे यार खा लेते हैं, पार्टी में आए हैं यार, दिवाली का टाइम है। Why? मेक अ गुड लाइफ स्टाइल ना, फिर क्यों गिल्ट में आना है, फिर क्यों वेट लॉस करना है? इट्स नॉट लाइक कि वन डे और अ मैजिक कि बस अभी कोरोना खत्म हो जाए, फिर दिवाली खत्म हो जाए, फिर न्यू ईयर खत्म हो जाए। नो, इट्स ऑल एक्सक्यूजेस, राइट। मेक अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, मेक अ हेल्दी फूड चॉइस, चॉइस ऑफ फूड, चॉइस ऑफ टाइम ऑफ ईटिंग फूड। लेट नाइट हो गया, नहीं खाना होगा तो नहीं खाना, खाना है मखाने खाइए, रोस्टेड चने खाइए, रोस्टेड सीड्स खाइए, पानी पीजिए, गर्म पानी पीजिए अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, राइट। टेस्ट बड्स मारिए नहीं, कंट्रोल में खाइए, टेस्ट के लिए खाइए, टेस्ट बड टेस्ट के लिए, पेट भरने के लिए नहीं है। पेट घर के सिंपल फूड से भरिए, राइट, दाल रोटी सब्जी से भरिए, राइट। नेक्स्ट इज all about Karwa Chauth now. Now we're going to talk about Karwa Chauth. Like, because I'm not going to drag this session so late because it's already late. Karwa Chauth का fast
करवा चौथ के फास्ट का ना मैंने देखा है सबके दिमाग में ना सुबह से एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आ जाता है, आज तो करवा चौथ का फास्ट है, आज हमसे कुछ नहीं होगा, माय गॉड शाम तक हमें भूखा रहना है। आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स सिमिलर लाइक इंटरमीडिएट फास्टिंग। क्या आप लोगों ने सोचा इस बारे में? मैंने जो अभी इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में आपको बताया कि आपको 12 घंटे क्लोज विंडो और 8 घंटे ओपन विंडो रखनी है, वही तो है इंटरमीडिएट फास्टिंग। या फिर अगर आप लोगों ने सुना हो ओमैड के बारे में, ओमैड इज व्हाट? इट्स 1 मील अ डे। करवा चौथ का फास्ट वही तो है, और क्या है? तो उसमें क्या है, क्यों इतना साइकोलॉजिकल टेंशन लेना? ये तो हमारे लिए और प्लस पॉइंट है कि हमें एक मौका मिल रहा है ओमैड और इंटरमीडिएट फास्टिंग करने के लिए, वो भी ड्यूरिंग द फेस्टिवल टाइम। तो क्या करेंगे अब? आपने जिनके घर में सुबह 4 बजे, मैनी पीपल हैव रिचुअल अबाउट इट, करवा चौथ पे सुबह वो सरगी खाते हैं। वो क्या है उसमें? अब आप क्या खाएंगे सरगी में? इस बार आप खाएंगे लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड हाई प्रोटीन, बिकॉज जनरली हम लोग जब कार्ब्स खा लेते हैं ना, ये आलू, ये जो फास्टिंग के टाइम में आप सोचते हैं हम कार्बोहाइड्रेट खा लेते हैं, आलू, साबूदाना, बहुत सारी चीज़ें कि जिससे हमारा पेट फिल रहे, नहीं, सॉरी, इट्स अ रियल मिथ। आप जितना कार्ब्स खाते हैं, कार्ब जल्दी ब्रेक हो जाते हैं और आपको भूख ज़्यादा लगती है, इसलिए आपको ग्लाइसेमिक आपका कम हो जाता है, ग्लाइकोजन लेवल, इसलिए आपको भूख लगने लगती है। तो इस बार आप सर्गी में क्या खाएंगे? इस बार आप सर्गी में प्रोटीन खाएंगे, स्प्राउट्स खाइए, काले चने खाइए उबाल के, राइट, विथ लॉट्स ऑफ वेजिटेबल इनटू दैट, सीड्स खाइए आप। आपको पराठा, आलू की सब्जी, ये सब सुबह सुबह नहीं खाने, वो आपको जल्दी डाइजेस्ट हो जाएंगे और जल्दी आपको दिक्कत करेंगे। वो आपको प्रोटीन खाएंगे, आपको हेवी फीलिंग रहेगी। जिनके यहाँ बिल्कुल बहुत ज़्यादा है कि पानी भी नहीं पीना, जो पानी पी सकते हैं प्लीज़ ड्रिंक वाटर। और जिनके यहाँ है एक रिचुअल है कि भाई पानी नहीं पीना है, सिर्फ साइकोलॉजिकल है, इट्स ऑल साइकोलॉजिकल। प्लीज़ सुबह सुबह सर्दी के टाइम पे पानी से पेट भरकर, ये सोच के कि पूरा दिन पानी नहीं मिलेगा तो मैं बहुत सारा पानी पी लेती हूँ और उसके बाद मेरे को ईजी हो जाएगा, नो, यू आर डूइंग रॉन्ग विद यू। अगर आप बहुत सारा पानी सुबह सुबह पी लोगे तो आपका पानी वो आपका क्लियर हो जाएगा थ्रू यूरिन एंड ऑल, तो आपको पूरा दिन और भी ज़्यादा डिहाइड्रेशन होगी और आपको भूख जल्दी लगेगी। तो प्लीज़ ट्राई टू हैव लेस वाटर दैट टाइम, हैव योर प्रोटीन इनटेक एंड हैव योर वेजिटेबल एंड फाइबर्स जो आपको फिल करके रखेंगे शाम तक, राइट। एंड जो लोग पानी पी सकते हैं, हैव ल्यूकवार्म वाटर। बहुत अच्छा मौका मिला है पतला होने के लिए, टेक अ ब्लेसिंग ऑफ इट, राइट, डोंट टेक अ स्ट्रेच अबाउट इट। तैयार हो यार, अपने आप को माइंड डाइवर्ट करो, अपना खाने का क्या फोकस है। अब करवा चौथ का फास्ट कैसे तोड़ेंगे? जैसे मैंने अभी बताया, करवा चौथ का फास्ट तोड़ना है, डोंट हॉग कि एक साथ आज तो सुबह से भूखी थी, आज तो ये भी खाऊंगी, फिर बाहर जाके डिनर भी है, बाहर जाके आइसक्रीम भी खानी है। नो, व्हाई? इट्स सिंपल लाइक आर रेगुलर इंटरमीडिएट फास्टिंग या ओमैड, उसमें भी तो हम सिंपल खाते हैं। पनीर की सब्जी बनाइए, छोले बनाइए, अगर किसी के छोले भटूरे, छोले पूड़ी बन रहे, हैव टू पूड़ीज एंड लॉट्स ऑफ छोले, लॉट्स ऑफ पनीर की सब्जी, हैव पनीर की सब्जी मोर, हैव टू पूड़ीज, राइट। मीठे में खाना है, मीठा सबको ना पोर्शन कंट्रोल में खाना है। मुझे पता है मुझे मीठा खाना है, मेरा फेवरेट मीठा बना है, भाई खीर बनी है, भाई हलवा बना है, मैं फिर एक पूड़ी में कॉम्प्रोमाइज़ करूंगी, मैं सब्जी ज़्यादा खा लूंगी बट मैं मीठे में कॉम्प्रोमाइज़, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। बट दैट इज़ इन योर पोर्शन कंट्रोल, वो आपको डिसाइड करना है कि कहाँ मुझे बैलेंस करना है। खाना सब कुछ है बट हम लोग नहीं कर पाते ना। हम क्या करते हैं, आज करवा चौथ का फास्ट है, आज कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं तो पूरा दिन, हम सिंपैथी में रहते हैं। नहीं यार, ये तो हमारे लिए ब्लेसिंग है कि हमें ओमैड और इंटरमीडिएट फास्टिंग करने को मिल रहा है, राइट। बट उसको तरीके से करेंगे और उसको तरीके से फास्ट को खोलेंगे, राइट। डोंट ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। अगर आप पानी ज़्यादा पी लेंगे उस समय तो आपको वो हेवीनेस करेगा, ब्लॉट करेगा, एसिडिटी करेगा, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया, ट्राई टू ओपन योर फास्ट विद इन लाइटर थिंग, एनीथिंग लिक्विड। उसके बाद आप उसको, लिक्विड मीन्स एनी ड्रिंक, एंड उसके बाद आप हल्का खाइए, सब्जियां ज़्यादा खाइए, छोले ज़्यादा खाइए, पूड़ी कम खाइए, 2 पूड़ी खाइए, 4 नहीं खाइए। उसके बाद मीठा भी खाइए बट एवरीथिंग इन अ पोर्शन कंट्रोल।
एंड उसके बाद कोशिश कीजिए खाना खाने के बाद वॉक करेंगे। फेस्टिवल सीजन में वॉक करने का टाइम नहीं मिलता, बहुत लेट हो जाते हैं, तो मैं जो करती हूँ अपने इस घर के सारे काम, किचन समेटनी है, कुछ चीज़ बच्चों का प्रिपेयर करनी है अगले दिन के लिए, अपने लिए कुछ करना है, ईट फर्स्ट एंड डू इट आफ्टरवर्ड्स। उसी से हमारी कैलोरीज बर्न हो जाएंगी, हमारा डाइजेस्ट हो जाएगा जो हमने खाया। सोने से पहले हैव योर डिटॉक्स वाटर, योर टर्मरिक टी, योर डिटॉक्स टी, एनीथिंग वार्म, राइट? सोने के 1 घंटे 2 घंटे पहले। तो पहले प्लीज़, it's a request from my side to all my gorgeous lady who are listening to me, please do your work afterward, first eat your food on time। जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, time, quantity and right food is very very important for anything, for your healthy life and your weight loss, right? सो हमने बात करी करवा चौथ की फास्ट की तोड़ने की। तो ओमैड इंटरमीडिएट फास्टिंग, इट इज़ ऑल अबाउट हमें सिर्फ फेस्टिवल सीजन में इंटरमीडिएट फास्टिंग पे फोकस करना है, कैलोरीज को बैलेंस करना है। मैंने आपको बताया क्या अच्छा हेल्दी सर्व करेंगे, गुड गिफ्ट्स हेल्दी करेंगे, तो हम हेल्दी ही खाएंगे। तो उस पर हम करवा चौथ की फास्टिंग के बारे में मैंने कंसेप्ट बताया, क्या इंटरमीडिएट एंड ओमैड है, तो कैसे फास्टिंग खोलनी है, किसी पार्टी अटेंड करनी है दिवाली कैसे है, तो हमें कैसे पोर्शन कंट्रोल में खाना है, अगले दिन कैसे बैलेंस करना है अपने आप को, फ्रूट डाइट पे रहना है। आप बिलीव मी, टेक माय वर्ड्स, आपका वेट ना तो बढ़ेगा, इवन कम ही हो जाएगा, ठीक है? लोड नहीं लेना है, सोचना नहीं है, बस पोर्शन कंट्रोल में खाना है और एंजॉय करके खाना है जो भी कुछ खाना है, और लाइफस्टाइल एक्टिव रखनी है। प्रॉब्लम ये है हम लाइफस्टाइल एक्टिव नहीं रखते, हम क्या करते हैं, बस खाते हैं और लेट जाते हैं, लेथार्जिक हो जाते हैं। नो, सारे काम बाद में, टाइम से खाना खाओ। पार्टी भी करनी है तो पहले कुछ खा लो, जिससे ऐसा नहीं होता, क्या होता है हम भूखा रहते हैं और पूरे दिन वी जस्ट हॉग। इसी चीज़ के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आई एम गोइंग टू शेयर फ्यू टिप्स अबाउट इट एट द एंड ऑफ द सेशन। प्लीज़ इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग एनीथिंग the weight management during the festival, please write in the comment box. We'll try to give you the answers about it. Oh, like see, I keep a small boxes like this with in my fridge with the butter paper. जैसे ये मेरी मेथी है, एंड ये 1 हफ्ते पुरानी मेथी है, इफ़ यू कैन सी दैट, ये 1 हफ्ते पुरानी मेथी है, कुछ नहीं है, सिंपल डिस्पोजल वाला बॉक्स है, कोई फैंसी बॉक्स नहीं है। बटर पेपर, जो ये रैपिंग पेपर होता है, फूड रैपिंग पेपर, आई कीप इट इन दिस। मैं इसको धोकर और हल्का सा इसको वो करके, एंड आई कीप इट इनसाइड दिस बॉक्सेस लाइक दिस। मैं अपना हरा धनिया, अपनी सारी वेजिटेबल्स, मेरी वीडियो में वो डिटेल में पता लगेगा। आज मेरे पास जो शॉर्ट में था तो मैंने सोचा आई जस्ट शेयर। सी my this coriander leaves also, they are so fresh, anything। मैं इस तरह से सब चीज़ें अपनी, शिमला मिर्च जैसे कैप्सिकम्स हैं, बीन्स हैं, ब्रोकलीज हैं, मैं सब काट के फ्रिज में इसी तरीके से हैंडी रखती हूँ। मशरूम, तो जैसे अगर मुझे भूख लगती है तो आई ईट रॉ, कम समटाइम्स टाइम नहीं मिलता अपने लिए कुछ बनाने का, या मुझे अपने लिए कुछ बनाना है तो सब कुछ कटा हुआ रखा होता है, तो मैं अपनी, जैसे मैं पोहा बनेगा, मेरी खिचड़ी बनेगी, मेरा पुलाव बनेगा, तो आई हैव लॉट्स ऑफ वेजिटेबल एंड लेस ऑफ दी ग्रेन्स। 2 चम्मच दलिया तो 4 चम्मच सब्जियाँ, मेरा फंडा ये रहता है, और दैट इज़ अ मेन हेल्दी वे ऑफ कुकिंग एंड ईटिंग। तो उस तरीके से अगर आप इस तरह से हैंडी अपने किचन में, अपने फ्रिज में सब कुछ रखते हो, तो आपको अपने लिए बनाना बहुत आसान हो जाता है। पनीर है, एकदम से भूख लगती है, बहुत तेज भूख लगती है हमें, और हम लोग ये सोचते हैं कि अब मैं कैसे खाऊं, मतलब भूख लग रही है, और आप एकदम से बिस्किट निकालने लगते हैं, और बच्चे भूखे हैं या आपको फैमिली को सर्व करना है। पनीर का पीस निकाला, टोफू रखा ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल सीजन, 2 पीस पनीर, 4 पीस पनीर के खा लिए, आप जंक खाने से बच जाते हैं, ठीक है? एंड मैं तो कुछ भी नहीं मिलता तो खीरा खा लेती हूँ, टमाटर निकाल के खा लिया, तो मखाने रखती हूँ, हैंडी रोस्टेड चने रखती हूँ, तो ईट दैट, तो आप उस जंक से बच जाते हैं। एंड आप हेल्दी खाते हैं तो ना तो आपका वेट बढ़ता है, और आपका ना तो वेट मेंटेन करने में भी आपको ईजी होता है। तो दीज आर द स्मॉल एंड क्रिस्पी टिप्स विच आई फॉलो ड्यूरिंग माई फेस्टिवल टाइम। और मैं सब कुछ खाया मैंने होली के टाइम पे, जैसे मैंने बताया, और अभी भी मैं सब खा रही हूँ, बट इन अ राइट टाइम। लंच पे खाती हूँ ज़्यादातर, मीठा नहीं खाती हूँ एवरी टाइम, आई डोंट मंच, मुझे मज़ा ही नहीं आता, मन ही नहीं करता मेरा, बिकॉज इट्स बिकम अ लाइफ स्टाइल, इट्स नॉट लाइक कंपल्शन यार, आई एम लाइक मैं अपने आप को अपना मन मार रही हूँ। ये
जब आप पहनते हो ना बहुत अच्छा लगता है. When you see yourself in the mirror, तो you feel good. And we have a very, I have my client and my dear friend Nitika with me right now live, and I just want to share a very beautiful comment, beautiful thing she shared with me recently today. I think yesterday she shared. She's with me since 3 months of her fitness journey, and when she joined us, she has so much of anxiety. कितना टाइम लगेगा, मुझे विजिबल चेंजेस लगेंगे नहीं लगेंगे. और मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ यार, फिटनेस पे फोकस करो, वेट लॉस फ्री में मिलेगा. एंड शी बिलीव इन मी एंड शी ट्रस्टेड ऑन मी. एंड खुद से प्यार होना, खुद से प्यार करो. Yesterday she went for a vacation after her fitness journey of 3 months, and she lost, I think, 8-9 kgs with us. Weight loss is not my issue. She lost a good inches, her body became fit, and she shared her pics. And what she said, that is a touching, and that is a real woman touch. Every woman going to touch about it. She said, I've become obsessed for myself, Neha. She messaged me from Dubai. She stays in Dubai, and she messaged me कि during my traveling I was just looking at my phone. I bought a new phone and it never high end phone है यार, कैमरा, बट कभी पिक्स अच्छी नहीं आई. बट इस बार बच्चों की पिक्स नहीं ली, खुद की पिक्स ले रही हूँ जब से, बिकॉज आई हैव फॉल इन लव विद माई सेल्फ. मुझे अपनी बॉडी अच्छी लगने लगी है यार. दिस इज़ द फिटनेस जर्नी, दिस इज़ एडिक्ट. हम इतनी सारी चीज़ों का एडिक्शन करते हैं, बैड थिंग्स का एडिक्शन करते हैं. क्यों ना फिर इस फिटनेस का एडिक्शन करें जो हमें खुशी देता है, फ्लॉट करने का मौका मिलता है. एंड शी इज, आई वॉज सो टच विद हर मैसेज, एंड आई थिंक इट्स सो इंस्पिरेशनल एंड इट्स सो मोटिवेटिंग फॉर मी ऑल्सो, राइट? कि हम खुद से प्यार करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. अगर खुद से प्यार करेंगे तभी हम औरों से प्यार कर पाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, रिस्पेक्ट योर बॉडी. स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर बॉडी. Start taking care of your body. और वो कब होगा जब your lifestyle become your fitness, your healthy life is become your lifestyle. So guys, I think enough for today's. So at the end my fitness partner के बिना कोई भी मेरा वीडियो एंड हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता. से नमस्ते, because yes. So at the end, what Ayansh will going to say to our viewers: eat right food at right time, at right quantity, and eat healthy. Don't forget to you can know how eat unhealthy food, and in portion control. So guys, it is very important to eat right food at right time, at right quantity. So don't forget about the portion control. Eat everything during this festival and enjoy your festivals and enjoy your day. Enjoy your day. It's night now, Ansh. So enjoy your festivals with all the foods you taste only for your taste, but not for your stomach filling, and right? Don't forget to eat healthy food. Yes, Ayansh, everyone going to eat healthy food, but in a portion control. So guys, we wish you a very happy Diwali and all the festival, all the celebration with good food, healthy food, portion control, and at correct time. With just dress up yourself beautifully. Try to send us a pic on our page, Heal to Fit, on Instagram and our Facebook page. We have made a small community of fitness group on our Facebook by the name of Dr. Sneha's Fitness Group. If you want to join our, because we used to share daily good tips about the nutrition and exercise in that group. It's a closed member group. So you can join that group by the link. It is there in our Facebook page and Instagram page. If you want, and if you don't find that link over there, you can write personally to me. You can WhatsApp me personally in the comment box over here, or write us on my WhatsApp number also. So at the end, we have launched our gift vouchers of Diwali. Just to thought कि हम लोग इतना गिफ्टिंग करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, तो why don't we gift a fitness package to our loved ones and our family friends, right?
इससे अच्छा गिफ्ट कुछ हो ही नहीं सकता. सोचते रह जाते हैं, why don't we gift this thing to our husband, parents, sister, brother, your wife, जो बहुत दिनों से सोच रही है वेट लॉस करना है यार, डाइटिशियन से कैसे बात करूँ. डाइटिशियन से डाइट डजंट मीन यू हैव आर ऑन अ डाइट. आपको पता है, अगर आप डाइट एक्सपर्ट से, डाइटिशियन से डाइट लेते हो तो आप सब कुछ खा सकते हो. अगर आप नहीं लेते हो ना तो हम कुछ भी नहीं खाते, और वी स्टार्व आर मेन न्यूट्रिशन वैल्यू फ्रॉम आर बॉडी, जो हमें फ्यूचर में हिजार्ड्स करते हैं. सो गाइज, stay tuned with us for more और informative videos in future. एंड मेरा भी यूट्यूब पे ये किचन हैक्स के ऊपर भी एक वीडियो आ रहा है. डू शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. डू फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, And do subscribe. our YouTube channel too. And I hope, thank you everyone for giving such a lovely comments and love and blessing on me and Ayansh healthy TV munching video. We have lots of videos on other topics in our pipeline. And I am We saying, have to say so many things. and I'm saying, you don't want to forget your healthy food. Ayansh is behind everyone now कि don't forget to have healthy food. So अगर मेरी बात याद नहीं रहती तो अयांश की बात जरूर रहेगी, because we have a youngest fitness partner with me, and believe me, he is my youngest and he is my real fitness partner. So guys, we wish you again a very happy happy Diwali, Diwali. Karwa Chauth and Bhaiya Dooj. Hope you enjoy all your festival with full Of your full health and happiness. A very good night. Stay blessed, stay happy, stay fit, and stay healthy. stay healthy. Thank you guys Bye. for watching our session. If you like our session, please do share with your friends and family. Thank you.